नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। स्वदेश आर में आप सभी का स्वागत है। ET Now स्वदेश के सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार की दिवाली कई मायनों में खास है। तकरीबन 2 साल बाद हम सजे धजे बाजारों को देख रहे हैं। लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि ये मुस्कान लोगों और हमारे दर्शकों के चेहरों पर हमेशा ही बनी रहे। वो देश की तरक्की में अपना योगदान दें और आगे बढ़ें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने वित्तीय फैसले सूझबूझ और सही वक्त पर करें। इसीलिए हम आज स्वदेश आर की शुरुआत करेंगे 2 खास मेहमानों की स्पेशल एडवाइस के साथ, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का जाना माना और भरोसेमंद चेहरा भी है। इडलवाइस AMC की राधिका गुप्ता और आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के A बाला सुब्रमण्यन, इन दोनों दिग्गजों से बात की ET Now और ET Now स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया और मेरी सहयोगी नयनतारा राय और आयशा फरीदी ने। Well, it gives me great pleasure to bring on board Radhika and Bala to talk about what a year it's been. We've introduced them in different capacities. Radhika is CEO of Edelweiss Mutual Fund, Bala is CEO of Birla AMC. They're the office bearers of AMFI now. Bala is the chairman of AMFI. Radhika is vice chairman. So today I want to introduce them not in the official capacity. Today I just want to introduce them two well-wishers of ET Now who've been coming on the channel on various turning points. We've been discussing, engaging, and we've been really taking this very simple message across. Stick to your asset allocation. Buy when there is fear, sell when there is greed. 80% of the wealth is created by the right asset allocation. Be a disciplined investor, and if you just ignore the noise and the short-term volatility, in the long term, equity or asset allocation will surely help you reach financial goals. So Bala, Radhika, happy Diwali to both of you. Thank you for joining us. On behalf of everyone from ET Now, Swadesh and ET Now, I would like to extend you season greetings. Happy Diwali, Nikunj, and to you and your team, for all the viewers, and thanks for having us on the show. As you rightly said, clearly, I think fear is something when it is there. I think one must consider investment. When there's a greed, definitely, of course, one need to be cautious. There's absolutely no question on that. Other than building a portfolio the longer term is the one which I think ultimately creates the wealth, and mutual funds have been doing that quite consistently. I'm extremely proud to be part of the mutual fund industry, and also extremely proud to be part of the Association of Mutual Funds India and support the industry for overall growth that it can add to the country, and also serve the large pool of growing investors' needs in the country. Nikunj, thank you so much, for having us and wishing you and your team at both ET Now and Swadesh and all viewers a wonderful Dhanteras and Diwali. And I'm echo Bala's sentiments and also love the opening statement. I think, you said it so beautifully. Asset allocation is all that matters in the long term. Have a portfolio that makes sense for you, your risk appetite, that has equity, that has fixed income. Hopefully, mutual funds can solve all your asset allocation problems today. We are very happy to be able to provide such a basket of solutions that can do that. And most importantly, ignore the noise and stay invested. Radhika, the trend towards SIP, the trend towards how Indians are now taking a leap of faith towards putting their savings into a growth asset like equities. Do you think this trend is here to stay, or this is a bull market phenomenon? The reason I'm asking this question is that I remember a conversation I had with Rakesh Jhunjhunwala once, and he said, when I started my career, my mother told me, don't be a stockbroker because shaadi nahi hogi. At least that image of the stock market has changed. So do you think that the SIP culture which has picked up now is more than a bull market phenomenon, Radhika?
I think the SIP and equity culture is, Nikunj, I'm sitting and doing this conversation in Delhi, which is my hometown. And I remember in the 90s, wealth was measured by the amount of property you had. Today, if there's any family gathering here, I'm almost always answering questions about mutual fund portfolios. And it could be questions from people who are 20, and it could be questions from people who are 50. I think the average Indian is getting more aspirational. And if those aspirations are to be met with money, then I think equity has to be the right asset class, particularly in this low interest rate environment. So I think that is here to stay. Equity investing has also become a lot more accessible and easier between digital mediums and all the solutions that funds provide you. It's not just large cap equity investing. Sitting in India today, you can do everything from large to small cap. You can do thematic ideas, you can do technology ideas, you can do overseas ideas. So the range to catch people's attention, I think, has also become wider. And I still don't think the SIP book size gets the credit that it does. I think even if you talk to global investors, the fact that we have $1.5 billion of retail money that comes into our markets, which is just Indians saving in a disciplined way, month on month, is something to be very proud of. We've gone from being an FII to then DII to then individual driven market. Radhika, it's Diwali time, so I'm going to just share a joke which me and Bala often said. And, me and Bala were talking on a forum and he said, Nikunj ka blood test hua. And Bala, what came out when the blood test report came out? Yes. I think that something is very interesting, right? Completely opposite of what you think, what you like it to be. And of course, definitely is something, as Radhika mentioned, Nikunj, clearly the SAP way of investing has now become the part and parcel of everyone's thinking. Sometimes I do a joke, or maybe I do hear from people. If you ask a set of people, have you made investment mutual fund? They'll probably scratch their head and said, let me just think through and say my portfolio. The moment you ask them, same set of people, say, have you made investment SAP? The answer would probably spontaneously come, yes. So that is the way SAP has now gone about the way of investing, way of life for investors in the country. I would also assume that when I was the last AMFI chairman, the year 2016-17, we launched the mutual fund Sahi as a campaign. Clearly, it has created huge inroads in the country in creating impact about the mutual fund as a brand in the Indian investors and savers' mind. That's something that has made a huge impact in terms of SAP as a book size is growing, and large pool of investors today, almost about 50% of the folios, I would assume, maybe 40% of the folios, I would assume, would have been come through the SAP as a book. So राधिका, मैं अपना नेक्स्ट सवाल आपसे हिंदी में पूछूंगी, और वो ये है कि आजकल बहुत चर्चा भी हो रही है कि म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्टर्ब होने वाला है. हम जो नए स्टार्टअप्स को देखेंगे, आप सचिन बंसल और नवी को भी देख लीजिए. आप लोग तैयार हैं ये डिस्ट्रप्शन के लिए? क्या प्लान है? आई थिंक 2-3 बातें मैं कहूंगी. सबसे पहली बात जो बाला ने कही, पहले तो ये इंडस्ट्री अभी भी इसका पोटेंशियल बहुत है, बड़ी हो गई है, लेकिन बड़े होने की गुंजाइश बहुत बड़ी है. जिस देश में 4-5% MF पेनिट्रेशन है, जहां वर्ल्ड एवरेज 40-50% है, वहां पाई एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है. इन्वेस्टर्स की पाई एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की पाई एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है, और नए एंट्रेंट्स आएंगे और मार्केट खोलेंगे, डिजिटल एंट्रेंट्स आएंगे, तो बहुत अच्छी बात है. आई थिंक all of us will be smiling. जहां तक डिस्ट्रप्शन की बात है, आई थिंक हर इंडस्ट्री में, और खासकर इस इंडस्ट्री में, मुझे याद है जब मैंने 4-5 साल पहले शुरू किया था, people are constantly talking about disruption, and I think with due respect to all the new entrants और वो जो लाएंगे इस मार्केट में, I think even the established players and established houses, I would just say don't underestimate what they can do. All of us are ultimately trying कि हम कुछ अच्छे प्रोडक्ट लाएं, मार्केट एक्सपैंड करें, एंड वही कोशिश रहेगी. एंड द मोर द मेरियर. इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से ग्रो करना चाहिए. बाला, लिटरली सेम सवाल आपसे भी, बिकॉज एक तरफ से आप देख रहे हैं कि IPO पॉप होता है, इतना गेन्स बनते हैं, बीट IRCTC, और अब तो IPO लाइनअप इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा है. एवरीथिंग फ्रॉम अ नाइका टू to the BAP of all, as Nayantara calls them, Paytm as well, soon to be IPOing as well. तो एक तरफ जब आप डायरेक्ट मार्केट के गेन्स देखते हैं, उसमें लगता है कि म्यूचुअल फंड में उतना रिटर्न नहीं बनता है.
तो ऐसी क्वेरी आप कैसे अपने रिटेल पार्टिसिपेंट्स को, रिटेल क्लाइंट्स को एड्रेस करते हैं? ये तो नया वेव चल रहा है, अभी आईपीओ का वेव चल रहा है। दूसरा एक है दैट जो आईपीओ का नाम लिया था, अभी सब कुछ प्रॉफिट के हिसाब से नई वैल्यूएशन सेट नहीं हो रहा है, रेवेन्यू के हिसाब से सेट नहीं हो रहा है, तो मॉडल के हिसाब से सेट हो रहा है। क्लियरली इफ यू लुक एट फ्रॉम द एंगल, द मार्केट इज कंप्लीटली लुकिंग एट न्यू सेट ऑफ कंपनीज टू रिवॉर्ड, बट उसमें भी म्यूचुअल फंड का भी पार्टिसिपेशन चल रहा है। बट अल्टीमेटली एज वॉरेन बफेट ऑलवेज सेज, द मार्केट का जो वैल्यूएशन जो बनता है, that comes on the base of revenue, the customer profit that you have, per customer profit that you bring in, the economies of scale that you bring in, contribution from per person contribution that coming in, and finally is the profitability. कल आज के दिन पे प्रॉफिट का हिसाब से जो वैल्यूएशन बनते हैं और नॉन प्रॉफिट के हिसाब से जो वैल्यूएशन बनते हैं, प्योरली इन द बेस ऑफ द स्टोरी के हिसाब से वैल्यूएशन बनते हैं, वो आज के दिन पे वेव चल रहा है। One cannot actually deny that is something which is being accepted. Investors के लिए एक opportunity है actually to make them short term profit or short term money making opportunity. But longer term sustainable जो म्यूचुअल फंड इतना साल से हम लोग देखा actually, मैं खुद actually markets में almost 30 साल से काम कर रहा हूँ actually. Clearly I've seen different waves coming, and each wave, believe me, has not sustained beyond a certain period of time. And उसके बाद fundamentals में लोग आना शुरू हो जाएंगे. Therefore, one must just keep in mind the mutual fund after seeing cycles. उसके बाद ही इतना सा हम लोग सस्टेन हो कि आज के दिन पे भी म्यूचुअल फंड का बात चलते रहते हैं एज ए गुड प्रोडक्ट इन्वेस्ट. इट कम्स ऑन द बेस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस दैट दे हैव क्रिएटेड, दैट कैन नॉट बी टेकन अवे. एट द सेम टाइम, गिवन द फैक्ट दैट आज के डिजिटल वेव चल रहा है, ये भी इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें न्यू एज प्लेटफॉर्म इज देयर. Therefore, we need to also become a little more conscious of this fact and understand and have it part of the portfolio. यही रिटेल इन्वेस्टर्स का ये वेव में आप ज्यादा खुशी हो कि एक ही वे में, उसमें ही वे में चलते मत जाइएगा. Look at your portfolio allocation and have exposure to these kind of names, as well as have exposure to the mutual fund as a portfolio in order to have a sustainable longer term return. That something is a key. तो शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि लंबी अवधि में एसेट बनाने का रास्ता है. इस दिवाली से अगली दिवाली तक बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, इस पर ET Now स्वदेश की टीम ने बात की मार्केट के 3 दिग्गज MK वेंचर्स के मधु केला और इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी और शंकर शर्मा से. Question here, Madhu. Considering you've inspired Shankar to now buy liquor companies, let's have your views over there. Is that what's happening this Diwali? People celebrating the year gone by and drinking more? That's very simplistic to say. I think whether you are sad or whether you are happy, you will always drink liquor. and that is the core to the belief. I feel that, I don't want to discuss stock specific, never done that. But these businesses continue to be, on a compounding growth path for India. And I think that will continue for a long period. But Aisha, on a more serious note, I want to just point out one thing, that, life is looking like a Ram Rajya, and it's all hunky-dory because everyone has made so much money in the last 12, 18 months. But let me put a word of caution that there are clear-cut pockets in the market wherein, there is overvaluation, and we honestly admit, I have admitted many times, maybe we don't have the skill, or maybe one is from old school of thoughts that one doesn't have the skill to, value many of these companies. But going by my past experiences, that in 2002, I was being told the same thing, that you don't know how to value a .com company. I know, but eventually earnings, eventually cash flows have to justify what investors are buying. And let's say, this quarter you see, next quarter, there's so much disruption, so many commodity prices have gone haywire, logistics costs have gone haywire. So, and
we have to be very, very careful on what you are investing into. You have to know the subject extremely well. Otherwise, 1 or 2 quarters of bad earning, like what happened in these pharma companies, stocks are down 30, 40, 50% by a click of a button. So what I am saying while the India story remains very strong, we are all very bullish in the medium and long term. But you have to really, really know the companies very well. Do not go by tip. Do not go by what is fashionable. Do not have this left out feeling that, because so many people made so much money and I am left out, so I'll buy whatever is available. So I am just putting a word of caution here. And the market is telling us, you look at what has happened to the market in the last 2 weeks. There are so many stocks which have corrected more than 25% in 2 weeks, while Nifty is only down 500 points. And you see the result reaction to so many companies. You miss a small miss, and stocks are getting penalized. So I am saying that this is a word of caution. However, Manish, while Madhu mentioned that it's time to look at value or economy-related sectors, something which you argued lots of times that when inflation is coming back, buy companies which in a sense will be benefiting because of inflation or hard assets. But there is a parallel market which is getting created. Nykaa is getting listed, Paytm IPO will come out soon, Zomato has made money for shareholders. The entire excitement in the unicorn space, do you think that will get challenged or that will also continue and we could be staring at 2 markets? Manish? Nikunj, you're right. They are really not 2 but 3 markets. There is the old economy value market, which again, as we allude back to 2001, did spectacularly well in the period post the 2001 crisis. There is, of course, the new disruptive kind of companies which are coming. And there's nothing to say that these companies will not perform very well as businesses, but it's not necessary. The stock prices will reflect what the businesses deliver. As you saw from the highs of 2000, 2001, it took almost 10 years of no returns for these stocks, despite the companies doing well, for those returns to appear. And we seem to be pricing in perfect execution for literally decades in some of these companies. And you must notice in most of these new age companies, the selling shareholders are the people who know the business, either the promoters or the private equity investors who have been inside. Whereas the people who are buying are, as Mark Faber used to famously say, that at the beginning of the cycle, the entrepreneur has the vision and the investor has the money. And at the end of the cycle, the entrepreneur has the money and the investor has the vision. So there's a bit of that exchange going on right now. And I would be certainly cautious. Having said it, as a part of TPG, we had the good fortune to participate in a number of these companies. And they are doing really well as companies, but valuation is something which each investor should judge for himself or herself. तो पिछला 1 साल बाजारों के लिए शानदार रहा है। पूरी दुनिया में इस दौरान करीब 60 ट्रिलियन की वेल्थ बनी है और इस दौरान किन लोगों ने सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई है और किन लोगों ने वेल्थ गंवाई है, चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी जयेश खिलानी से। इस साल के वेल्थ क्रिएटर्स की बात करें तो सबसे ऊंचे लिस्ट पर है इलॉन मस्क का नाम। इनकी नेटवर्थ हो चुकी है लगभग $300 बिलियन की, जिसमें से $120 बिलियन सिर्फ इसी साल में उन्होंने अपने वेल्थ में ऐड किए हैं। उनके बाद बर्नार्ड आर्नोल्ड का नाम आता है, जिनकी नेटवर्थ अब $150 बिलियन के ऊपर चली जा चुकी है, जिसमें से उन्होंने 50 बिलियन इस साल में इकट्ठा किए हैं। और फिर आता हूं मैं लैरी पेज पे, जिनकी नेटवर्थ अब $130 बिलियन है, जिसमें से $40 बिलियन उन्होंने इस साल में ऐड किए हैं। और फिर आता है एक इंडियन नाम जो कि गौतम अदानी का नाम है, जिनकी नेटवर्थ अब लगभग $80 बिलियन की है, जिसमें से उन्होंने आधे से ज्यादा सिर्फ इस साल में कमाई है, जो कि $45 बिलियन है। और फिर उसके बाद सार्जे ब्रिन का नाम आता है। अगर मैं वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स की बात करूं तो कॉलिन हुआंग का नाम सबसे ऊपर आता है इस लिस्ट में,
जिनकी नेटवर्थ अब लगभग 30 से 35 बिलियन डॉलर की है, जबकि इनकी नेटवर्थ में जो है 30 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ है इसी साल में। जे ली दूसरा नाम है जो मैं फोकस करना चाहूँगा, 10 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। हालांकि ये लगभग 20 बिलियन डॉलर इन्होंने खोए हैं इस साल में। और फिर हुई का यहाँ क्या नाम आता है, जिनकी नेटवर्थ अब 7.5 बिलियन डॉलर है, जो कि 16 बिलियन डॉलर कम हुई है इस साल में। अगर इंडिया की सबसे रिच लिस्ट की बात करूंगा तो ऑफकोर्स मुकेश अंबानी का नाम सबसे पहले आता है, जिनकी नेटवर्थ लगभग 100 बिलियन डॉलर की है और उन्होंने 20 से ज़्यादा बिलियन डॉलर इस साल कमाए हैं। गौतम अदानी जो इंडिया के रिचेस्ट सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है वो है 80 बिलियन डॉलर पर और उनकी 45 बिलियन डॉलर का एडिशन हुआ है इस साल में। अजीम प्रेम जी जो लगभग 40 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है जिनकी, और 13 बिलियन डॉलर उन्होंने इस साल में जोड़े हैं अपने नेटवर्थ को। और फिर मैं बात करूंगा शिव नादर और आर के दमानी की, जिनकी नेटवर्थ 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है और इन्होंने भी अराउंड 5 से 10 बिलियन डॉलर जोड़े हैं अपने नेटवर्थ में इस साल के दौरान। आगे बढ़ते हैं। दिवाली के मौके पर मार्केट के 3 एसेस यानी 3 इक्के गौतम शाह, पंकज मुरारका और विकास खेमानी ने अपने अपने पसंदीदा सेक्टर्स और शेयर बताए हैं। कहां पैसा लगाएं और क्या सावधानी बरतें। आप हमारे से कुछ दिन पहले बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 8-10 साल के कंसोलिडेशन के बाद रियल एस्टेट स्पेस बाहर आ रही है। कुछ हद तक सेलेक्ट स्टॉक्स में कैप्चर हो भी रही है वो चीज़, लेकिन आपका जो पहला स्टॉक है जो आप 1 साल या नेक्स्ट दिवाली तक के लिए बता रहे हैं, वो उस हिसाब से रियल एस्टेट स्पेस की रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हाँ जी, फर्स्टली आपको, आपके पूरे टीम को और सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक पिछले साल काफी अच्छा रहा, हमारा तो यही मानना है कि अगला साल भी ऐसा रहे, बट थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा क्योंकि जब लास्ट दिवाली आई थी तो काफी हेडविंड्स थे, काफी वरी थे, तो मार्केट एक वॉल ऑफ वरी क्लाइम किया। बट अभी क्या है, सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इतनी अच्छी रिटर्न नहीं आए, बट फिर भी अगर इंडिया स्टोरी को बिलीव करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज काफी है सेक्टर्स और स्टॉक्स में। और रियल एस्टेट की बात करें तो मुझे तो अच्छा लगता है। आई थिंक 10 साल की ब्रेकआउट है और मोर इम्पोर्टेंटली ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्योंकि इतने फॉल स्टार्ट्स आए हैं पिछले 4 से 6 सालों में कि लोग कई बार ट्रैप हो चुके हैं। बट अभी जो फंडामेंटल्स हम लोग देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड और जिस तरह की चार्ट्स बन रही है, हमारा रिकमेंडेशन है कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो पिछले 2-3 महीनों में उतना अच्छा नहीं किया है, बट इसके जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट चेंज हुई है, जो टेलविंड्स है, मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा कर सकता है। बाकी रियल एस्टेट ऑलरेडी काफी चल चुके हैं तो सपोर्ट लेवल्स दूर है, बट मैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मुझे अच्छा लगता है फंडामेंटली और टेक्निकली, और यहाँ से 40 से 50% की तेजी अगर सब कुछ ठीक रहा तो देखने को मिल सकती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्ले द रियल एस्टेट रैली। कंजम्पशन एक बहुत बड़ी थीम है। इकोनॉमी अनलॉक की तरफ कई सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं और हम देख रहे हैं वो स्टेप्स, और ये थीम काम भी कर रही है। क्या इस थीम पर लंबे नजरिए से इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट से कोई आपके पास कॉल होगी? बिल्कुल। तो एक जो शेयर है जो या कंपनी है जो हमें जो बहुत अच्छी लगती है वो है आदित्य बिरला फैशन। आप देखें तो पिछले ये कोविड के लॉकडाउन और अनलॉक की वजह से लास्ट लगभग 2 साल से जो है कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो है घर के बाहर नहीं निकले हैं और लोगों ने ज्यादा स्पेंडिंग नहीं किया है, खर्चा नहीं किया है। पर अब जब हमारा वैक्सीनेशन काफी आगे पहुंच गया है और थर्ड वेव का फियर या एक जो भय था वो भी कम हो गया है, तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम देख रहे हैं इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही है और हम लोग हमारी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ वापस जा रहे हैं। अब हम लोग वापस ऑफिस भी जाने लगे हैं और एक स्कूल्स खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रिस्टोर हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बहुत जोर से कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो आएगी, जिसको हम रिवेंज स्पेंडिंग कहते हैं। हमने देखा है कि यूएस और यूरोप में भी जब इकोनॉमी खुली तो एक रिवेंज स्पेंडिंग की बहुत जोर से लहर आई और मुझे लगता है इंडिया में भी ऐसा ही कुछ होगा, बिकॉज कंज्यूमर्स ने लास्ट 2 साल में स्पेंडिंग या खर्चा नहीं किया है। और आदित्य बिरला फैशन जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांडेड अपैरल कंपनी है। ये लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में ब्रांडेड अपैरल्स में
तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने क्योंकि लास्ट 1.5 साल में फंक्शंस और इवेंट्स नहीं हुए हैं, शादियां नहीं हुई है या सोशल गैदरिंग नहीं हुई है, तो या हम ऑफिसेज नहीं गए हैं बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला है, तो हमने कपड़ों की खरीदारी नहीं की है। पर अब जब सब सोशल गैदरिंग्स और इवेंट्स होने लगेंगे और हम लोग सब वापस अपने ऑफिस या दूसरी जगह जाना लगेंगे, तो एक बहुत जोर से अपैरल कंजम्पशन में ग्रोथ आएगी। इस साल की जो थीम रही है ना, उसमें रियल एस्टेट स्टॉक्स ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और रिकवरी लौटी है पूरे सेक्टर में और डिमांड भी बहुत तेज रही है। आपके तरफ से क्या कोई रियल एस्टेट स्टॉक्स या फिर कोई हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स है क्या आपके पोर्टफोलियो में जो आप सुझाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी रियल एस्टेट काफी समय से पिछले 1 साल से ठीक कर रहा है और मेरा मानना है कि रियल एस्टेट में अगले 8 से 10 साल बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल तेजी रहने वाली है, क्योंकि इसमें रेरा इम्प्लीमेंटेशन के बाद में पूरा ये सेक्टर ही ऑर्गेनाइज हो रहा है, यूजर ड्रिवन मार्केट हो रहा है और ऑर्गेनाइज मार्केट हो रहा है। तो इसकी वजह से इसमें एक बहुत चेंज हो रहा है और तो या तो आप डायरेक्ट रियल एस्टेट प्ले कर सकते हैं या दूसरा उसका एक है कि जिस जैसे डिमांड बढ़ रही है, हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है, तो क्रेडिट ग्रोथ की क्रेडिट भी उसमें हर आदमी घर मॉर्गेज पे खरीदता है। तो हाउसिंग डिमांड जो है मुझे लगता है 15 से 20% ग्रोथ आ सकती है। तो उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो काफी वेल पोजिशन है, सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ के आसपास की उनकी लैंडिंग बुक है। एनपीए साइकिल भी इसका बिहाइंड हो चुका है, जैसे कि फर्स्ट वेव सेकंड वेव के बाद थोड़ा सा रिटेल एनपीए आया था। दे आर गियर्ड अप टू स्मॉल सिटीज, लो टिकट हाउसिंग फाइनेंस, 15-16% की ROE का रिजल्ट देती है। तो जैसे जैसे अभी ये माहौल अच्छा बनते जाएगा, स्टॉक का रीरेटिंग भी होगा और अर्निंग ग्रोथ भी आएगी। तो अगेन रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से देखे जाए तो ये एक बहुत अच्छी प्ले है, लिमिटेड डाउनसाइड एंड अपसाइड कुड बी सिग्निफिकेंटली हाई। दिवाली पर मिठाई की दुकान पर किस तरह की रौनक दिखाई दे रही है और महंगाई से बिजनेस पर क्या असर पड़ा है, हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने गोपाला स्वीट्स जाकर जायजा लिया। दिवाली बिना मिठाई के तो दिवाली ही नहीं होती है ना, तो हमें मिठाई की भी तो शॉपिंग करनी है। मैं जाऊंगी गोपाला स्वीट्स। गोपाला स्वीट्स दिल्ली में उनके पास 26 तो कम से कम स्टोर्स हैं। वहाँ मुझे प्रॉमिस किया गया है कि हम जलेबी फ्राई करेंगे, हम लड्डूस को बाइंड करेंगे और हम काजू की बर्फी के ऊपर वर्क लगा के उनको कटिंग भी करेंगे। चलो What's Diwali without sweets? We've come to a Gopala store in New Delhi. There are 36 of these in the National Capital Region, one of the biggest that you have. They're entering new categories, whether it's mustard oil and a lot of other things that we're going to be talking about with the Managing Director, Karthik Arora. Thank you so much for letting us come to your store in your busy festive period. How's business? Business is good. I think what we experienced last couple of years, it's doing pretty well this year, and people have a lot of excitement because of the festival. Indulgent shopping is happening. It is. Consumers back. Absolutely, they are back. They're Is back it bigger than completely. last year? It's bigger than last year, and I think we are doing even better than 2019. It's Diwali time. So Karthik, what all are we going to make? We Or make- rather, I'm going to yeah, make. Tell me, you can make some kaju katli, some motichur laddus. I can some- make some it, or I'm barfi, going to yeah. pretend to make Yeah, it. you can assemble them if you want here right now. Jalebis, I love jalebis. Yes, you can make jalebis as well. I'm going to try and fry jalebis and do all the other things that he said, and I think I'll be pretty good at it. Yeah, I know, I'm sure. So this is obviously barfi. This is kaju barfi. Yeah. We're going to be teaching her how to finish it up and cut it and pack it. Seems to be very exciting. Pick it up. Yeah. But there's AC. Wonderful. Not bad. Not bad. You managed. Oh, but should have been closer, no? That's okay. Because there's a big gap now. Oh, guys, assembling laddus is not so easy. I mean, barfis is not easy. How have you dealt with the महंगाई? See, there has been a spike in the pricing of majority of the raw materials, majority of the ingredients. Correct. And have you passed it on?
we absorbed some cost and we passed on some cost to the consumers. Now we see how Nayantara cuts the Kaju Katli. I mean, that can't be so difficult. Easy, no? Not really. And then when you cross lines, that's how the diamond will be formed. Oh, पूरे पत्ते diamond. अब तो मैं professional. अब देखते अब हैं आप दिखाओ. कैसे professionally किया जाता है, जल्दी किया जाता है. We have our new jalebi artist here, Nayantara, who's going to be trying her hands on making jalebis today for us. I'm wearing an apron because I don't want to ruin my clothes. And I love cooking. I love eating. But guys, once you make it, you'll probably start. क्या यार, I'm going to get fat. I'm not going to do barfis and I want to Jalebis, jalebis. yeah. Thank God, you're not going to let me come every day. It's a difficult show, by the way. Of course This it is. This is a real This is a art. much difficult art. Okay, so now I'm going to try and make jalebis. This is the first time anyone's ever letting me make jalebis. These are probably the Gujarati style jalebis, you know. I would like my video journalist to zoom in and show off. This is the first time I've ever made jalebis and they don't look so bad. Now you can take them and put in the syrup. Khatam? Yeah, it's done. The first Gas in, safe first to out. But they're too thin, yeah. You want it then? No. I thought mine would be thick because I would put so much, but squeezing it out is not easy. We can call these the NT jalebis. I'm called NT by my friends. I'm actually really excited. It's my favorite dessert. Wow. Ooh. They look appetizing. Would you eat them? Absolutely. I will. And now, Karthik is going to eat the jalebi I cooked Made and by rated on a scale of 1 to 10. 8. Don't be a gentleman, be honest. 8, yeah. Really? They taste very well. They're out of shape. Rest everything's fine. Well, I... Try. Now you tell me. 10 on 10, dude. Ah. 10 on 10. 10. This has been so much fun. Can I come next Diwali too? You can come every day if you want to. No, I can't You're afford to most welcome. eat all this every day, but next year also we're going to cook and do this. Absolutely. And we're going to try some new recipes next time. Happy Diwali. Thank you. Thank Happy you Diwali so to you as much. well, Thanks so much, everyone. Karthik. Bye. Thank you. दलाल एंड प्रोचा के डायरेक्टर और फंड मैनेजर मिलिंद कर्माकर का कहना है कि जो भी बाजार में अभी तेजी आनी बाकी है, हालांकि गिरावट की संभावना भी है और ऐसे में बाजार में सिर्फ किसी के कहने पर निवेश नहीं करना चाहिए, अपनी रिसर्च करना बेहद जरूरी है। आप एकदम ओल्ड स्कूल डीप एनालिसिस और लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर हैं। अब बहुत ही रेयर ब्रीड हो गई है, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए होता है अपनी पोजीशंस में। तो आज जब हम दिवाली का माहौल है और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की बातचीत चल रही है, तो आप ऐसे बाजार में कौन से ऐसे स्टॉक्स लेके पुराने बैठे हुए हैं, मुझे कॉल नहीं चाहिए, जो आपने उस समय जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस, ताकि हमारे नए व्यूअर्स और नए इन्वेस्टर्स ये बात समझ सकें कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कितनी फ्रूटफुल होती है और कितनी आनंद मिलता है जब आप अपनी कॉल्स को लेके फ्रूटफुल होता देखते हैं, लेकिन आपको पेशेंट रहना पड़ता है। तो कुछ एग्जांपल्स अगर आप शेयर कर सकें। जी बिल्कुल। तो अगर हम इंडिया जैसा देश देखें तो यहाँ पे ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, ये इम्परेटिव है। मुझे इसका एग्जैक्ट हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है। यानी ये देश में जो लेवल पे हम हैं वहां से आगे काफी ग्रोथ आ सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी रादर देन गोइंग फॉर अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। क्योंकि क्या है कि अगर आपकी इकोनॉमी आप पकड़िए 6-7
प्रतिशत से भी बढ़ रही है रियल जीडीपी ग्रोथ, और जहां पे 4-5% इन्फ्लेशन है, तो करीब 12% ग्रोथ तो इकोनॉमी में ही चल रही है। और ऐसी इकोनॉमी जहां पे 12% ग्रोथ चलती है, वहां पे जो अच्छी कंपनियां हैं वो कम से कम उससे 25% ज्यादा, यानी 15 से 16% ग्रोथ तो आपको दे ही सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी वर्क्स बेटर, क्योंकि कंपाउंडिंग के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग जब ही होती है कि आपका शेयर या आप जो कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसको आप लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहे उसमें। क्योंकि क्या है कि अगर 16% या से 18% से एक कंपनी ग्रो हो रही है, तो हर 4 साल में उसका सेल्स डबल हो जाएगा, उसका प्रॉफिट शायद उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही अगर आप लंबे सिरे तक रखते हैं तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलते हैं, जो बहुत बार, या आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम आर सिग्निफिकेंटली हायर than the returns which you would probably get out of trading. तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी कंपनियां जहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है, वैसी कंपनियां या वैसे सेक्टर को निवेशकों ने, अगर वो निवेशक इन्वेस्टेड रहते हैं लंबे सिरे तक, तो उनको बेनिफिट बहुत ज्यादा हो सकता है। जी मिलिंद जी, इनफैक्ट ये काफ़ी सही कहा आपने, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए और लंबी अवधि में भारत की ग्रोथ स्टोरी है भी बहुत अच्छी, ये सही बात है। अब एक चीज़ हुई है मिलिंद जी बाज़ार में, अगर आप देखें कि पैंडेमिक के लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक मार्केट ने रिकवरी जिस तरह की दिखाई, मोमेंटम जिस तरह का दिखाया, अब उसमें इकोनॉमिक रिकवरी और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी जुड़ गया है। बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स का, जिन्हें बहुत ही लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही है, जिन्होंने शायद खुलकर पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर वो इंतज़ार करते रहे कि बाज़ार थोड़ा हल्का हो तब इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे लोगों को अब आपकी सलाह क्या है? तो ऐसा है कि अगर आप 2003 से 2008 का पीरियड देखें, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मार्केट करीब करीब 6 टाइम्स ऊपर गया। अगर अभी आप देखेंगे तो मार्केट 2017 से अभी तक ऑलरेडी डबल हो गया है। अगर आप 2003 से 8 देखेंगे तो मार्केट वाज ड्रिवन नॉट ओनली बाय लिक्विडिटी व्हिच केम इन, इट वाज आल्सो ड्रिवन बाय जीडीपी ग्रोथ। तो 2003 से 2007 रादर 2002 से 2007 मार्केट डबल हो गया 5 साल में, और वहां से अगेन 2.75 टाइम्स हो गया अगले 3 साल में। टोटल ग्रोथ वाज रफली अबाउट 5.5 टाइम्स टू 6 टाइम्स। अगर हम अभी की बात करते हैं तो 2017 से 2021 तक 4 साल में मार्केट डबल हो गया है। अब जीडीपी ग्रोथ तो अभी शुरू हो गई है, so I wouldn't be surprised if the market goes up significantly in the coming 3 years. बट मार्केट जब ऊपर जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, वो करेक्शन आते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि निवेशक, अगर लेफ्ट आउट फीलिंग आ गई है तो आप थोड़ा रुकिए, मार्केट में करेक्शन आते रहते हैं। खाली इतना देखिए कि आप जो कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उसकी ग्रोथ कैपेबिलिटी कितनी है, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज after a small correction or after a correction, you can definitely invest in these companies. Like अभी अगर आप देखें तो मार्केट में कई सारी कंपनियां ऐसी हैं, most of them rather, जो ऑलरेडी ऊपर से 15-20% करेक्ट हो गई है। तो थोड़ा बहुत अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि निवेशक जो है वो ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। कोई उनको फोन कर देता है और बोलता है कि ये कंपनी हमें बहुत अच्छी लग रही है, इसमें कोई ऑपरेटर है, या ये कंपनी भाव ऊपर जाने वाला है, तो छट से ले लेते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। आपका कमाया हुआ, मेहनत का कमाया हुआ पैसा है,
तो थोड़ा होमवर्क कीजिए। आप रेफ्रिजरेटर जब घर में लेते हैं तो 2-3 घंटा, क्या मैं बोलता हूँ 2-3 दिन खर्चा करते हैं। 50,000 रुपया आप उसमें लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, मे बी 25,000, बट 25,000 का इन्वेस्टमेंट करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जरा विचार करें और ठीक से सोच के इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अभी मार्केट में तेजी खत्म हो गई है और काफी आना बाकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आज के स्वदेश हीरो की। काश मेरा भी एक घर होता, ऐसा सोचने वालों के लिए 40 साल पहले एक उम्मीद बनकर उभरा था HDFC, जिसने लोगों को अपने घर के सपनों को पूरा करना शुरू किया और लाखों लोगों को रियायती दरों पर होम लोन भी दिए। और इसीलिए हमने चुना है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी HDFC को, और आज के स्वदेश हीरो हैं केकी मिस्त्री। अपना घर एक ऐसा सपना जो पूरा हो जाए तो जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल बन जाता है, और खुशनुमा एहसास भी। लेकिन कुछ साल पहले तक कई लोगों की जिंदगी गुजर जाती थी, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह जाता था। और ऐसे में साल 1977 में स्वर्गीय HT पारिक की लीडरशिप में आगे आया हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी HDFC, जिसने लोगों के घरों के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया। HDFC ने 1978 में पहली बार घर खरीदने के लिए पहला लोन मुहैया कराया। इसके बाद लोग HDFC लिमिटेड से जुड़ते गए और HDFC लोगों के सपने पूरा करता चला गया। अब तक HDFC करीब 86 लाख से ज्यादा लोगों के घर के सपने को पूरा कर चुका है और कुल 5.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे चुका है। HDFC के पास 21 लाख से ज्यादा के लोन अकाउंट है। देश भर में HDFC के 603 इंटरकनेक्टेड ऑफिसेज हैं जो ग्राहकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं, जबकि दुबई, लंदन और सिंगापुर में 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं जहां भारतीय मूल के व्यक्तियों और प्रवासी भारतीयों को होम लोन प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। यही वजह है कि पिछले 4 दशकों से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी HDFC भारत की अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक बन चुकी है, जो सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के कई देशों में भी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर काम कर रही है। 2019 में HDFC लिमिटेड की बाजार पूंजी 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर देने की योजना में HDFC लिमिटेड ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत HDFC ने पहली बार में ही करीब 1.5 लाख घर खरीदारों को रियायती ब्याज दरों पर लोन मुहैया कराया। हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अनुभव रखने वाले केकी मिस्त्री ने भी कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मिस्त्री 1981 में HDFC का हिस्सा बने थे और 1993 में उनको इस कंपनी के कार्यकारी निदेशक की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद 1 जनवरी 2010 से वो HDFC के वाइस प्रेसिडेंट और CEO चुने गए और तब से लेकर अब तक वो इस पद पर है। HDFC ने 1977 में अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है, जिसने कई बाधाओं को पार करते हुए भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का तमगा हासिल किया है, और इसलिए हमने चुना है HDFC को आज का स्वदेश हीरो। ET नाउ स्वदेश। तो HDFC के CEO केकी मिस्त्री से बात की हमारी सहयोगी आयशा ने। केकी, ET नाउ स्वदेश के दर्शकों की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू योर एंटायर टीम एट HDFC। थैंक यू। पहले तो मैं आपके पूरे कलीग्स और व्यूअर्स को भी मैं आई वुड विश देम अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी फेस्टिव सीजन अहेड। ओके केकी, आप बात करते हैं आपके सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस की। ये बताइए कि इस तिमाही में सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ से आई, अफोर्डेबल सेगमेंट में कि हाई एंड लग्जरी सेगमेंट में? देखिए, आप अगर लास्ट 3 साल इफ यू लुक एट द लास्ट 3 इयर्स, तो ग्रोथ जो आ रही थी सिस्टम में 2017 से लेके समझो 2020 तक वाज लार्जली इन द मिडिल इनकम, लोअर इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। अपर एंड मार्केट जो है, हायर इनकम मार्केट जो है, उसमें डिमांड काफी स्लो थी, डिमांड वाज नॉट हाई।
Over the last 1 year, last 1 year, we have started seeing a pickup in demand even in the high-end market. So agar aap metropolitan cities ko, if you look at Mumbai, Delhi, Bangalore, Pune, Hyderabad, Chennai, all these places have started seeing a substantial pickup in growth. तो आप जो lower income, middle income category थी, वहाँ पे तो growth has sustained, has maintained, but in the higher income group, the growth has now picked up. So overall, if you look at the component of loans in the affordable housing space now, in number terms, it is 30%, 30%. A year ago, it was 32%. So there has been a slight reduction in that as a proportion of total loans, but that is not because that has slowed down. It is only because of the high-end market picking up faster. लेकिन इस बार क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग है? क्या ये कहना ठीक होगा कि जो रियल एस्टेट स्पेस में हम देख रहे हैं वो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, वो कोई एक सेगमेंट नहीं है कि सिर्फ लग्जरी अच्छा कर रहा है या सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छा कर रहा है या सिर्फ लो इनकम ग्रुप अच्छा कर रहा है, बट ब्रॉड बेस्ड रिकवरी देखी जा रही है? बिल्कुल सही, आप कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है. जो रिकवरी हो रही है वो कंप्लीटली ब्रॉड बेस्ड है. जैसे मिडिल इनकम हाउसिंग, लो इनकम हाउसिंग में ग्रोथ हो रही है, सिमिलर ग्रोथ we are seeing in the high income market. So it's completely pan India and it is across all income groups. और जो हमने जो इकोनॉमिक रिवाइवल देखी है in the last 3 months, it is really phenomenal. क्योंकि दीपक पारेख ने इकोनॉमिक टाइम्स को वीकेंड के एक इंटरव्यू में बोला कि ये रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ा साइकिल है और अभी बस इसकी शुरुआत है. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही टाइम है हमारे दर्शकों के लिए जो बस सोच रहे हैं कि अब घर खरीदे, कब घर खरीदे? इज दिस द टाइम? मैं तो 1 साल से मैं बोल रहा हूँ, I've been saying that this is really the best time to buy a house and it continues to get better and better. If you look at the last 4 years, up 2017 to 2021, if you see, consistently income levels system में बढ़ रहे हैं. People's incomes are rising by about 7.5-8% a year, typically year after year. So up 3-4 say 4 years का growth, if you say, there'll be about a 30% growth in income levels. Property prices जो 2020 अभी आज जो आपको मिल रही है, by and large, it is of course project specific, but by and large जो भाव में property बिक रही है आज is not very different from what it was in 2017. तो आपका cost of a house has more or less remained the same, but income levels are a lot higher. And therefore affordability, if you were to look at from an affordability standpoint, this is the best time to buy a house. Also interest rates. So interest rates are as low as they'll ever get. And therefore a combination of low interest rates plus significantly improved affordability makes this a very good time to buy a house. क्योंकि आपके सेकेंड क्वार्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अगर एनपीएस देखे जाएं तो उनके लिए आपको सेकेंड क्वार्टर में 3,761 करोड़ रुपीस की प्रोविजनिंग करनी पड़ी. क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है आगे जाके या इसी लेवल पे रहेगा और आप मेंटेन कर पाएंगे इसको? सेकेंड क्वार्टर में प्रोविजनिंग तो इतना नहीं था. आप जो बोल रहे हैं दैट वुड बी फॉर अ डिफरेंट फिगर ऑल टुगेदर. प्रोविजनिंग ये क्वार्टर में मेरे साथ 452 करोड़ के ऐसा कुछ था. हमारे जो क्रेडिट कॉस्ट होता है, विच इज द कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग डिवाइडेड बाय द लोन बुक, दैट फॉर द 6-month पीरियड स्टैंड्स एट 40 basis points, 40. Last year it was about 50 basis points. So actually credit cost as a percentage of the loan book has marginally declined. Okay. इंडिविजुअल डिस्बर्समेंट्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहेगी कि किन फैक्टर्स की वजह से आपको लगता है कि ये लेवल आगे जाके ऊपर ही बढ़ेगा या एटलीस्ट ये लेवल आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या हो रहा है कि अफोर्डेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है. Affordability has improved because income levels are higher, property prices are where they are, and people structurally are feeling much better. The feel-good factor is much better. आप जब भी घर लेते हैं, it is the single largest investment you make in your lifetime. Because it is the largest investment, you want to do it at a time when you're feeling confident about yourself. And for a variety of reasons, pick up in the economy, economic growth, revival of everything, demand all over the country,
That coupled with the buoyancy in the stock market, I think all these factors taken together is making people, the general public, a lot more confident about their future than in the past. And this is one of the reasons why more and more people are looking to buy a house now. क्योंकि ये जो आप रिवाइवल की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इंटरेस्ट रेट्स का भी है, तो हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आरबीआई इस लेवल पर इंटरेस्ट रेट्स को बना पाएगा, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस क्लियरली आसमान की ऊंचाइयां छू रही हैं, उसके चलते इन्फ्लेशन एज वेल बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है. आपका व्यू क्या है कि किस लेवल पर जाके हम देखेंगे कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स पे कुछ मूव करे या इंटरेस्ट लेवल्स एटलीस्ट थोड़ा बढ़े इससे आगे? देखिए, मेरे हिसाब से इन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, आई पर्सनली डोंट सी आरबीआई चेंजिंग रेट्स in the whether it's 3 months, 4 months, 6 months, 5 months, I don't know. But I don't see RBI increasing rates. But जो liquidity system में है, जो short term liquidity है, that they will start, in my view again, slowly starting to take out of the system. तो जैसे short term liquidity system से कम होने लगी, start slowing down, short term rates will start moving up. So आज जो yield curve जो है, जो long term rates और short term rates के बीच में जो gap है, that gap is very high. That gap will start narrowing by virtue of short-term rates going higher. Long-term rates will be a function of, more demand for money, pick up in infrastructure spending and things like that. So clearly, likelihood of any reduction in interest rates, to my mind, is almost non-existent. क्योंकि ईटीना स्वदेश के व्यूअर्स और एंटायर टीम की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद. Thank you so much. And wish your viewers and your colleagues the very best for Diwali and the festive season ahead. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां, ताकि ये समझ सकें कि दिवाली क्यों मनाई जाती है.